अफ्रीका के लिए बनती है? आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए से ज़रूर बताइएगा। यानी टोटल ही मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होकर अफ्रीका जा रही है टोटली, और इंडिया में अब वो यूज़ ही नहीं हो रही। इंडिया में और ज़्यादा आगे एडवांस वर्जन। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है हाउ अफ्रीकन सी मेड इन चाइना वर्सेस इंडिया। तो देखते हैं इस वीडियो का, इंटरेस्टिंग टाइटल है। As a Congolese, every time I read Made in China, my mind tells me this is fake. And when I see Made in India, it tells me this is original. But it's not only me. I think this have been so rampant everywhere that if I take the case of Africa, beauty or makeup product, hair product or medical product, as soon as it's shown Made in India, they trust it much more. But is this really true? So I use a bunch of Indian product. For example, this mouse by an Indian company, this keyboard, this alarm, these headphones, this watch, this note, the pen, literally everything around me which I use now is made in India. And to be honest, I'm quite satisfied with the quality at the price at which I get it. But then how does that happen? How does it happen that Indians can make affordable stuff, but when Chinese make something affordable, it ends up being lower quality? Just look at this. China make good products also, which they end up selling parts to the US or any other country, which means they also know how to make good products. But when they make affordable product, the idea is this is going to be sold outside to people who cannot afford high quality things. And that makes that you have to make low quality things because they will be okay with them since they just need something for now. Yet on the other hand, Indians, when they make affordable stuff, they do not make them to sell them outside. They still make them for Indians in India. And that makes that they will make that affordable thing to gain another client, so they can't fool him by a low quality thing because they know he will go away. So they have to give you something affordable, yet try as best as possible to give it to you on a good quality. That gap makes that made in India definitely will be made in India because they want to sell it to an Indian who needs assurance that I have to rely on this brand to buy from there next time. But when it's made in China, I probably don't even know the brand. I barely check brands of stuff which I buy from China. I just need the product, and the next thing which I know is probably it might not sustain to live for longer, so I will need to buy another one in the next 3 or 6 months, and that destroys the idea. But there is a possibility of buying a high quality also in China. Yet what interests me here is how Indians managed to go with the idea of making affordable things which can still be of good quality. And I've said about this in my other videos about how Indians literally captured the market of bikes of Africa by doing the same. They make affordable bikes but which are really strong, and they won the entire market of bikes in Africa. The same way they did with medicines. In the whole world today, India is the only plug when it comes to affordable medicine, because you are sure you will get good medicines on an affordable price, which somehow will give you again the same expectations you had on a very expensive medicine. And that's a very intelligent strategy which Indians use. And I think to me that makes India to be a much more reliable partner for Africa. Yet to be honest, China have saved a lot who couldn't afford very expensive products. Anyways, thanks so much for being here. Catch you next time. Okay, तो सेम वही कंडीशन जो पूरी दुनिया में चाइना को लेके है या चाइना की प्रोडक्ट को लेके है कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो अफ्रीका में भी यही मामला है। अच्छा, चाइना एक ही वक्त में कई तरह की क्वालिटी बनाता है। हमारे देश में या अफ्रीका में या दूसरे ऐसे देशों में लो क्वालिटी की चीज़ें भेजता है। लो क्वालिटी से मुराद ये है कि वो चीज़ें नापायदार होती हैं, लॉन्ग टर्म नहीं चलती, और मतलब यूँ समझ ले कि चाइना है चले तो शाम तक वरना रात तक। क्या एक डायलॉग है कि चाइना की चीज़ें कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। अच्छा, यही चाइना की चीज़ें यूरोप में बेहतरीन क्वालिटी की भी मिलती हैं। यानी चाइना अगर चाहे तो अच्छी क्वालिटी की भी चीज़ बना सकता है और लो क्वालिटी की भी चीज़ बना सकता है। तो हमारे जैसे देशों के लिए या अफ्रीकन जैसे देशों के लिए चाइना ने लो क्वालिटी ही रखी हुई है। अच्छा, इसकी बनिस्बत सेम वही चीज़ भाई बता रहे हैं कि इंडियन चीज़ लो प्राइस तो हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी है। यानी कि एक माइंड सेट है कि इंडियन चीज़ है तो अच्छी होगी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मतलब जैसे अगर मेड इन इंडिया लिखा होता है तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, मेडिकल के हवाले से या कॉस्मेटिक के हवाले से या शैम्पूज़ के हवाले से या ऑयल के हवाले से, मतलब इंडियन है
तो इसका मतलब है कि 100% सही होगा। हमें अपने कंट्री की बनी हुई चीज़ों पे भरोसा नहीं है, हमें इंडिया की बनी हुई चीज़ों पे बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है। अच्छा, बाइक के हवाले से पूरी एक डिटेल वीडियो है, पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है कि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा बाइक्स जो हैं बाकायदा इंडियंस के जो डीलर्स हैं वो अफ्रीका में बैठे हुए हैं, और इंडियंस बाइक अफ्रीका में बहुत पसंद की जाती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। एक बाइक तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक बाइक तो ऐसी है जो इंडिया में बिकती ही नहीं है, सिर्फ अफ्रीका के लिए बनती है। आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए से ज़रूर बताइएगा। यानी टोटल ही मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होकर अफ्रीका जा रही है टोटली, और इंडिया में अब वो यूज़ ही नहीं हो रही। इंडिया में और ज़्यादा आगे एडवांस वर्जन यूज़ हो रहे हैं। तो अफ्रीका का मामला बिल्कुल मुझे पाकिस्तान वाला मामला लग रहा था। माइंड सेट, चाइना की चीज़ पायदार नहीं है, चाइना की चीज़ लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, और यही चीज़ चाइना यूरोप में भेज रहा है तो बेहतरीन भेज रहा है। एक दोस्त के पास एक स्पीकर था, माइक और स्पीकर दोनों जुड़ते हैं आपस में, तो इतना सा स्पीकर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त वॉइस, वो मेड इन चाइना था। मतलब यकीन नहीं आ रहा था कि यार चाइना की चीज़ इतनी ज़बरदस्त, और बहुत महंगा भी था। उन्होंने यूरोप से लिया था, यूके से लिया था, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में ही बता रहा था, दिखने में ही उसको हाथ लगा के ही पता चल रहा था कि उसकी क्वालिटी बहुत आला है, मामूली चीज़ नहीं था वो, लेकिन वो था चाइना का। लेकिन हमारे माइंडसेट, हमारे पास चाइना की इतनी लोकल चीज़ें आती हैं कि हमारे माइंडसेट ये बने हुए हैं कि चाइना की चीज़ लोकल होती है, लेकिन हमें वो लोकल ही देता है, बेकार चीज़ ही देता है। और दुनिया को अच्छी चीज़ भी देना चाहे तो दे सकता है। अफ्रीका जैसे देशों को और पाकिस्तान जैसे देशों को उसने चूना लगाया हुआ 100%। लेकिन यही चीज़ इंडिया के मामले में नहीं है। अच्छा, मेडिसन के मामले में पूरी दुनिया का 30% 40% मेडिसन इंडिया से ही जाती है, ये भी दुनिया को पता है। अफ्रीका में भी जाती होगी 100%। तो इंडियन चीज़ों पे भरोसा है अफ्रीकन्स को भी। इसका मतलब इस वीडियो से ये आइडिया हुआ। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।